حضرین محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو دل کی بیماری لگ جائے، وہ جسمانی ہو یا روحانی طور کی بیماری ہو، سرکار نے فرمایا کہ بندے کبھی بھی مایوس ہو کے نہ بیٹھ جانا۔ اگر کبھی دل میلا کچیلا ہو جائے، زنگ لگ جائے، بیمار پڑ جائے، اللہ کے ذکر کی طرف اس کا دھیان نہ جائے، کتراتا پھرے، حضور نے فرمایا کہ بیمار دل والے مایوس نہ ہونا، بلکہ تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد کا وظیفہ کرنا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ یا نبی کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ 3-4 خطاب پیش کرتا ہوں اور اگلے سبحان مصطفیٰ کو دعوت نعت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اے وی شان حبیب میرے دی نشرہ سینے والا، اے وی شان حبیب میرے دی نشرہ سینے والا، جیڑا ونڈیاں مک نہیں سکدا اس خزینے والا، جس دی ریس کرے کستوری اس پسینے والا، او سارے جگ دا ایک سہارا پاک مدینے والا۔ کیوں آکھے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اے وی شان حبیب میرے دی ہر ایک عقدہ کھولے، اے وی شان حبیب میرے دی ہر ایک عقدہ کھولے، او دوزخ دا بالن بندا شان او دی جڑا تولے، ایک ایک مٹھا بول سجن دا منہ وچ مصری گھولے، او دے صدقے واری جاواں جدے بولن وچ رب بولے۔ مل کے بولو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، تے انشاءاللہ نہ رہے گا روگ کوئی، یا محمد محمد پکاردا رہو، انشاءاللہ نہ رہے گا روگ کوئی، یا محمد محمد پکاردا رہو۔ بڑیاں برکتاں والا ہے نام نوری، کر کر ذکر ہو سینہ ٹھاردا رہو، جنوں یاد کریے او بھی یاد کردہ، بن کے طالب نبی مختار دا رہو، فتح چمے گی قدم فاروق تیرے، او نعرے پاک نبی دے مار دا رہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حاضرین دی احتشام، نبی پاک کے پاک ذکر کے ساتھ آپ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سنحان مصطفیٰ اسد علی صاحب۔ ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسد علی تشریف لاتے ہیں اور آپ سے گزارش کہ آپ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، فاطمہ اور علی پھر حسن اور حسین، فاطمہ اور علی پھر حسن اور حسین، فاطمہ اور علی پھر حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیا بات ہے، کتنے نانا ہے ان کے نوازے بھی ہیں، کتنے نانا ہے ان کے نوازے بھی ہیں، کتنے نانا ہے ان کے نوازے بھی ہیں، پر
کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گر جو ملے شہر سرکار میں ایک گر جو ملے شہر سرکار میں ایک گر جو ملے شہر سرکار میں تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آج آئے ہو تم عقل کہندی ہے ہمت ہے کول تیرے میرے نال آ تور تک لے چلاں عشق کہندا ہے دل دیاں کھول اکھاں تینو تور تے نور تک لے چلاں عقل کہندی ہے میری جے گل منے تینو جنت دی حور تک لے چلاں عشق کہندا ہے حوراں نو چھڈ چلیا تینو درے حضور تک لے چلاں جنتاں نو حوراں نو چھڈ کے عشق درے رسول والے کیوں لے جانا چاہندا ہے اس واسطے کہ اوتھے صرف بندیاں نو ہی نہیں بلکہ شاعر کہندا ہے بندگی نو سرور ملدا ہے بندگی نو سرور ملدا ہے دیدہ و دل نو نور ملدا ہے میرے آقا دے در تے موجاں نے جو بھی منگو ضرور ملدا ہے سرکار دے در دے سوالی بن کے سرکار دے نام دا نعرہ بلند کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نبیاں دا سلطان مدینے نبیاں دا سلطان مدینے دو جگ دی جند جان مدینے او گنبد خضرا دے وچ ویکھو عرشاں دا مہمان مدینے تے چلو سارے رل کے چلیے چلو سارے رل کے چلیے ویکھن رب دی شان مدینے تے ویکھن والی اکھ دے ہووے ویکھن والی اکھ دے ہووے دفتہ رحمان مدینے نبیاں دا سلطان مدینے تے سارے رل کے کرو دعاواں سارے رل کے کرو دعاواں اے سارے عاشق جان مدینے تے سارے عاشق کٹھے ہو کے رل کے نعت سناون مدینے کیونکہ جیون دا ہر چج مدینے ہر عاشق دا حج مدینے تے دعا ہے وے کہ ساڈی نعتاں والی ربا محفل جاوے سج مدینے حاضرین دی احتشام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں غرق ہو کر ڈوب کر فنا ہو کر ذکر رسول کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سنہان مصطفیٰ حیدر علی صاحب مستمع کی طرف تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ ماشاءاللہ دعائے زین حاضری ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظارہ آپ کر پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آپ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان
दिल से गुरूर निकले बेरे ज़ोर निकले दिल से गुरूर निकले बेरे ज़ोर निकले या रब में बना दे माशाअल्लाह में बना दे पैकर तू आज़ी का या रोता फिरा दागे जिगर दिखाऊं रोता हुआ फिरा अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफा दो इज़्न हाज़री का कर लूं माशाअल्लाह 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 हाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर मैं जनाब अब्दुल हमीद कुरैशी सरवरदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना और मुबारक की तकरीब में अपने भाई शाहिद उम्मीद कुरैशी, जाहिद उम्मीद कुरैशी, सज्जाद उम्मीद कुरैशी और आबिद उम्मीद कुरैशी हमारे दोस्त मोहम्मद अली कुरैशी सरवरदी साहब की जानिब से तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको हुज़ूर सादतसीम के पाक ज़िक्र की महफिल में अदब के साथ बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हुज़ूर सादतसीम का ख़ुसूसी फैज़ान अता फरमाए। शान मुस्तफ़ा की बात करने लगा हूँ। एक मरतबा फिर हुज़ूर सादतसीम की मोहब्बत में डूब कर अपने और मेरे दराजात की बुलंदी के लिए बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। जिस तरफ जाने दो आलम के इशारे हो गए। बड़े मोहब्बत भरे अशार आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत अलैहि रहमत ने लिखे कि जिस तरफ जाने दो आलम के इशारे हो गए उस तरफ कौनैन के सारे नज़ारे हो गए। दोस्तों, आज तक हमने यही देखा, यही सुना, यही पढ़ा कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। और ये भी बताता चलूं कि 70,000 फरिश्ते जो बड़े ताकतवर हैं वो सूरज को खींच के तलू करते हैं और 70,000 खींच के गुरूब करते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं आका, आपकी उंगली के इशारे पर कि सूरज गुरूब हो चुका है, मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उंगली का इशारा किया कि अली की नमाज कज़ा न हो जाए। वो सूरज जो 70,000 बड़े ताकतवर फरिश्ते खींच के गुरूब करते हैं, मुस्तफा करीम की उंगली का इशारा होता है, सूरज पलट के वापस आ जाता है। आज तक चांद अपने मदार से हटा नहीं, जो कुदरत ने रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं, तकर्रुरी कर दी उसकी, उसी पे चल रहा है, उसी मदार में। लेकिन कुर्बान जाऊं आका, जब आप पहाड़ी पे चढ़ते हैं, अल्लाह का निजाम है कि चांद इधर उधर नहीं हो सकता, पर करीम आका जब आपकी उंगली का इशारा होता है, चांद 2 टुकड़े होके जमीन पे गिर पड़ता है। अरे लोगों, दरख्त चला नहीं करते, दरख्त बोला नहीं करते, दरख्त सुना नहीं करते किसी आम आदमी की बात, पर मेरे करीम आका की बारगाह में यहूदी आ जाता है, कहता है कि ऐ मोहम्मद, अगर सामने लगा हुआ दरख्त वो आपकी रिसालत की गवाही दे तो मैं आपको अल्लाह का रसूल मान लूंगा। सरकार ने फरमाया कि जा दरख्त के साथ
किसी पत्ते के साथ मुंह लगा के कहे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। मैं ये भी बताता चलूं कि वो दरख्त जहाँ लगा था आजकल वहाँ मस्जिद शजर बनी हुई है, मैंने भी देखी, अल्लाह आपको भी ज़ियारत अता फरमाए। दरख्त लगा है। अब यहूदी इतना बेईमान था कि जो सूखी हुई टहनी थी उसके करीब जाके सूखे हुए पत्ते के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, सरगोशी की कि तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। बाद में ईमान ले आए, कहते हैं अल्लाह की कसम मैं देखा और हैरान हो गया कि सूखे हुए पत्ते के साथ सरगोशी की कि ये सुने ना। तो कहते हैं खुदा की कसम दरख्त दाएं झुकता है, बाएं झुकता है, आगे झुका, पीछे झुका, जड़ें उखाड़ता हुआ, धूल उठाता हुआ, दौड़ता हुआ मुस्तफा की बारगाह में आ गया और कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अरे मेरे मुस्तफा पैगाम भिजवाएं, यहूदी की जुबानी, यहूदी के हाथ पैगाम अगर दरख्त को भिजवाते हैं तो दरख्त दौड़े चले जाते हैं। लोगों, दरख्त चलते नहीं, पत्थर बोलते नहीं। पर मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर मुस्तफा करीम की निगाह मुट्ठी काफिर की होती है, पत्थर टूटे हुए हैं, कंकरी बनी हुई हैं, कंकरियां काफिर के हाथ में है, लेकिन निगाह मुस्तफा जब पड़ती है काफिर कहता है कि मोहम्मद मेरे हाथ में जो कुछ है अगर बता दो क्या है तो कलमा पढ़ लूंगा। सरकार ने फरमाया कि मैं बताऊं या फिर मोहब्बत की निगाह से उस मुट्ठी की तरफ देखा और फरमाने लगे या वो बोले जो मुट्ठी में है। तो खुदा की कसम साहबा कहते हैं कि अबू जेल की मुट्ठी में बंद कंकरियां मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुट्ठी से आवाजें आने लगी। लोगों, खजूर के तने किसी के हिजर में रोते नहीं हैं, पर तारीख गवाह है कि सतून हन्नाना आज भी मस्जिद नबी शरीफ के सहन में जो मौजूद है, वो सतून हन्नाना खजूर का एक सूखा हुआ तना था जिसके साथ टेक लगा के हुजूर खुतबा जुमा दिया करते थे। किसी सहाबिया ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके पे कुर्बान जाएं, आका मैं मिंबर बना लूं? फरमाया बना लो। और जिस जुमा हुजूर मिंबर पे बैठ गए, खजूर का तना एक कोने में पड़ा था, ऐसे सिसकियों की आवाज आने लगी जैसे बच्चा रो रहा है। सहाबा हैरान हो गए कि बच्चा मौजूद नहीं, रोने की आवाज कहां से आ रही है। सरकार ने फरमाया सहाबियों उस तने को उठा के मेरे पास ले आओ। तना हुजूर के पास लाया जाता है, हुजूर उस पे हाथ फेरते हैं उसी मोहब्बत के साथ जिस तरह बच्चे के हाथ सर पे हाथ फेरा जाता है। और हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बाद में बताया सहाबियों मैंने तने से पूछा क्यों रो रहा है। तना अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आप मेरे साथ टेक लगाया करते थे, मैं लज्जत महसूस किया करता था, आज मैं आपसे जुदा हो गया हूँ, आपकी जुदाई में रो रहा हूँ, मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया मैंने पूछा क्या खजूर के तने मेरी मोहब्बत में रोने वाले तुझे इस दुनिया में जिंदा करूं या कयामत के बाद जन्नत में जिंदा करूं, वहां भी मेरा साथ तुझे मुयस्सर होगा, तेरी खजूरें अंबिया खाएंगे। अर्ज की आका मुझे जन्नत में जिंदा कर दिया जाए। सरकार ने फरमाया थे मेरे मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए। अरे लोगों, वो हुजूर की ऊंटनी मुबारक जिस पे हुजूर सवारी किया करते थे, जब विसाले मुस्तफा हो जाता है तो तारीख गवाह है कि वो ऊंटनी जिस जगह बैठी थी उसी जगह बैठी रही और रोती रही तब तक कुछ ना खाया पिया। हुजूर के हिजर में इतना रोई कि जहां बैठी थी बैठे बैठे उसका दम निकल गया। और एक बार जिंदगी में जिस दराज गोश्त जिस गधे मुबारक पे मेरे करीम आका ने सवारी कर ली, सहाबा कहते हैं कि वो गधा पहले आम गधा था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातो तस्लीम तशरीफ लाते हैं, गधा अर्ज करता है आका मुझ पे सवारी फरमाएं, मेरे भाग जाग जाएंगे। सरकार दो आलम ने शफकत फरमाते हुए गधे पे सवारी की। और फिर सहाबा कहते हैं पहले उसका नाम और था, हुजूर ने फरमाया तेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा रखेंगे। उस गधे का नाम याफूर रख दिया गया। और सबसे पहली रवायत आशिकों के पीर मेरे आका मेरे मौला सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने से कहा कि तू मेरा कासिद है। जब भी किसी सहाबी को बुलाना होता याफूर को कहते, वो बुला के लाता। सैयदना सदीक अकबर फरमाते हैं कि एक रोज मैं अपने घर में था, सरकार ने
जाफूर को आवाज दी, जाफूर मस्जिद नबी के बाहर बैठा होता था और अपने पांव ठकोर कर लब्बैक की आवाज बुलंद करता। हुजूर फरमा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया जा सिद्दीक को बुला। अब गधे को शऊर नहीं होता कि सिद्दीक का घर कहाँ है, उमर का कहाँ है, बिलाल का कहाँ है। गधे को क्या पता नामों का, क्या पता रिश्ते और ताल्लुक का, लेकिन जिस गधे पर मेरे मुस्तफा सवार होते हैं उसे बंदों से बढ़कर शऊर अता करता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं गधा भागता हुआ मेरे घर में आया, घर में दरवाजे पर सर के साथ दस्तक दी और जिस तरह बाशऊर इंसान दरवाजे के आगे से हट जाता है, मैं बाहर निकला तो गधा जाफूर एक तरफ खड़ा था, मैं पीछे भागने लगा, जाफूर ने मेरा पल्लू पकड़ लिया, मैं समझ गया कि इमरजेंसी कॉल आ गई है। मैं भागता हुआ दरबार मुस्तफी में आया, आका क्या हुक्म है, इमरजेंसी है? तो सरकार दो आलम फरमाते हैं हाँ हाँ अबू बकर, इसने अगर पल्लू खींचा है तो सच बात है कि इमरजेंसी कॉल आ गई। अरे गधे को शऊर मिल जाता है कि इमरजेंसी किसको बुलाना है और किसे आहिस्ता से बुलाना है। ये मेरे मुस्तफा की जात का फैजान है कि अगर पत्थर की तरफ देखें वो कलमा पढ़ते हैं, दरख्तों को पैगाम भिजवाएं वो दौड़े हुए आते हैं, ऊंटनी पे सवार हो जाएं वो रोती है। हिजरे मुस्तफा में जिस तने के साथ टेक लगा लें वो तना हिजरे मुस्तफा में रोता है। दोस्तों आज के दौर में वो दिल कहाँ गए, वो आंखें कहाँ गई, वो यारियां, वो मोहब्बतें कहाँ गई कि हम हर वक्त जिक्र करते हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, मस्जिदें हैं आलीशान, एसी लगे हुए हैं, तमाम सहूलियात हैं, दीन की तबलीग जोरों पर है, टेलीविजन पे तबलीग, रेडियो पे तबलीग, मस्जिदों में तबलीग, घरों में तबलीग, हर मोहल्ले में आलिम, हर घर में आलिम, हर जगह पे आलिम है। लेकिन वजह क्या है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए इकबाल ने निशानदेही कर दी थी कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। आज ताऊती ताकतों ने हमारे सीनों से, हमारे दिलों से इश्क़े मुस्तफा छीन लिया है। आज बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़ी तबलीगें हैं, पर मोहब्बत मुस्तफा से खाली हो गई है। याद रखो कि जब तक अल्लाह के वलियों से निस्बत ना होगी, अल्लाह के महबूब बंदों से राबिता ना होगा, मुस्तफा की जात से मोहब्बत नहीं होगी, तब तक दीन का, इस्लाम का फैजान नसीब नहीं होगा। दोस्तों अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह के महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और वो जो इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े सहाबा, इश्क़े अहले बैत और इश्क़े औलिया डॉक्टर अब्दुल हमीद कुरैशी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ डॉक्टर बिस्मिल्लाह सरकार को नसीब हुआ, उसका एक कतरा आज की इस महफिल पाक के तसद्दुक से अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे हाल पे लुत्फ़ व एहसान फरमाए। अब बारगाहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सनाहान मुस्तफ़ा इब्रार कादरी साहब हदिया पेश करते हैं। मुल्तमिस कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह मुस्तफ़ी में हदिया इनात पेश करने की सआदत हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तेरी शान करीमी बेनदर जाती है और जिंदगी कितने मराहल से गुजर जाती है और बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं जोली मेरी बर जाती है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह।
بڑھیے وصل